আপোনালোকক আন্তৰিক সম্ভাষণ সহ আদৰণি জনাইছোঁ। Ladies and gentlemen and dear students, on behalf of the Vice Chancellor and the members of the Executive Council, I would like to extend a warm welcome to you all to the third convocation of Assam Science and Technology University, Guwahati. সমাৱৰ্তনৰ গোটেই সময়ছোৱাত উপস্থিত সমূহ ব্যক্তিকে মোবাইল ফোন ছুইচ অফ নাইবা চাইলেণ্ট মোডত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সমাৱৰ্তন চলি থকা সময়ত সকলোকে নিজ স্থানতে বহি থাকিবলৈ আৰু কথা পতা, ফটো তোলা আদিৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটোও জনাওঁ যে সমাৱৰ্তনৰ সময়ত প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত ফটোগ্ৰাফী আৰু চেলফি আদি নিষিদ্ধ। গ্ৰেজুৱেশ্যন চেৰেমনিৰ সময়ত এৱাৰ্ড গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাৰ নাম ঘোষণা কৰা হয় কেৱল তেওঁহে নিজ স্থানৰ পৰা আগবাঢ়ি আহে যেন। সকলোকে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক প্ৰটোকল মানি চলিবলৈ আৰু মাননীয় আচাৰ্যই প্ৰস্থান নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰেক্ষাগৃহত নিজ স্থানতে বহি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় আচাৰ্যৰ প্ৰস্থানৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকল প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰতে বহি থাকিব যদিও ব্যক্তিগত ফটো চেলফি আদি তেতিয়া ল'ব পাৰিব। প্ৰেক্ষাগৃহৰ বাহিৰত ফটো তোলা নিষেধ। লঘু আহাৰৰ ঘোষণাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে ভিৰ নকৰি শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা ওলাই যাব। প্ৰেক্ষাগৃহত ঘোষণা কৰা মতে বেচ অনুসৰি চাৰ্টিফিকেট বিতৰণ কৰা হ'ব। চাৰ্টিফিকেট সংগ্ৰহৰ বাবে আৰু স্নেক্স গ্ৰহণৰ বাবে ভিৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। 1, 2 আৰু 3 নম্বৰ শপত লওঁতে গভীৰ ধৈৰ্য, আত্মবিশ্বাস আৰু উৎসাহেৰে I do promise বুলি ক'বলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। স্বৰ্ণ পদক আৰু প্ৰগ্ৰাম টপাৰৰ চাৰ্টিফিকেট এই প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰদান কৰা হ'ব। আন চাৰ্টিফিকেট আৰু শিক্ষাৰ্থীসকললৈ লঘু আহাৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিটৰিয়ামত বিতৰণ কৰা হ'ব। ধন্যবাদ।
Chancellor Astu and other esteemed dignitaries take their seats. The national anthem will then be followed by the university anthem. Enter the auditorium. May I request all present to kindly rise. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। প্রযুক্তিরে প্রান্ত ব্রদে এই হাকুরির মানদে। প্ৰযুক্তিৰে প্ৰান্ত প্ৰদে এই হাকুৰিৰ মানদে। জীৱলৈ শনিবুৱাই অনা কৃতিত্বৰ অৱশে। হাঁচি পাত পাত মুগা কাঁহ পিতলৰ নিখুঁত নিৰ্মাণৰে। ৰূপহী অসমীয়ে প্ৰান্ত প্ৰদেশ ৰূপহী অসমীয়ে প্ৰান্ত প্ৰদেশ। গণসংযোগ কৃত্ৰিম বোধেৰ প্ৰসাৰিত সূৰ্য। আমাৰ মুঠিত পৰমাণু বৈক্ষৰ সঞ্চিত বীৰ্য। মহাকাশ আৰু ৰবট প্ৰযুক্তিৰ বিশাল সূৰ্য। কোনো কল্পনা বাস্তৱ একাকাৰ কৰা নতুন প্ৰযুক্তিৰ সূৰ্য। নতুন প্ৰযুক্তিৰ সূৰ্য।
सम्मानित करेंगे। माननीय कुलाधिपति से अनुरोध करेंगे कि वे दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें। अधिपति, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया असम विज्ञान एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का शुभारंभ की घोषणा करें। मैं असम विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। आज के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ के अवसर राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, आज के आदरणीय अतिथि प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री, जलवायु विज्ञान शास्त्री एवं भारतीय उष्णकटिबंधीय अंतरिक्ष संस्थान पुणे के पूर्व निदेशक प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ गोस्वामी जी, विश्वविद्यालय कोर्ट एवं विश्वविद्यालय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्य परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, उत्तीर्ण एवं पुरस्कृत छात्र छात्राएं, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। हमें विश्वविद्यालय के स्नातकों को उपाधि एवं पदक प्रदान करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है, जो विभिन्न उपाधियों से संबंधित वर्ष 2021-22 की समविषम षटमासिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। आज के दीक्षांत समारोह में हम स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विशिष्ट प्रमाण पत्र हेतु 2768 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने जा रहे हैं। साथ ही हम 15 स्वर्ण पदक एवं विभिन्न पाठ्यक्रम के 50 उत्कृष्ट स्थान प्राप्त धारकों को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधि की यात्रा सन 2013-14 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों से प्रारंभ हुई। आज असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 33 संबद्ध महाविद्यालयों, जिसमें राज्य के समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी सम्मिलित है, इनके साथ एक परिपक्व संस्था के रूप में उभरा हुआ है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 11 स्नातक अभियांत्रिकी, 11 स्नातकोत्तर अभियांत्रिकी, 18 अन्य स्नातक और 18 अन्य स्नातकोत्तर
3 विशिष्ट प्रमाण पत्र एवं 13 विद्यावरिधि पाठ्यक्रम दैट इज PhD का आयोजन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में 2018-19 में AICTE के आदर्श परिचर्या एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के CBCS के परिचर्या को भी लागू किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के आदर्श परिचर्या के दिशा निर्देशों विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 से औद्योगिकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान पाठ्यक्रम भी लागू कर दिया गया है। सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता लगभग 4500 है। वर्ष 2019-20, 20-21, 21-22 एवं 22-23 के शैक्षणिक सत्रों में क्रमशः 2705, 3480, 3442 एवं 3714 छात्र छात्राएं विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में पंजीकृत है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 194 शोधवेत्ता है। विश्वविद्यालय 2016-17 से विश्वविद्यालय परिसर में ऊर्जा अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है, MTech इन एनर्जी स्टडीज, जिसमें AICTE ने 18 प्रवेश अनुमान्य किए हैं। विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। असम विज्ञान एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय शैक्षणिक क्षेत्र 2020-21 के बाद से AICTE डॉक्टरल फेलोशिप दैट इज ADF फेलोशिप के अंतर्गत PhD प्रदान करने के लिए प्रति शैक्षिक सत्र हेतु 5 अध्येतावृत्ति दे रहा है। विश्वविद्यालय देश के उन 41 तकनीकी संस्थानों में और असम में एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय के रूप में है जिसमें AICTE द्वारा ADF योजना के तहत ADF फेलोशिप दी जा रही है। विश्वविद्यालय में शोध कार्य चल रहे हैं। जिन शोध कार्यों के लिए विश्वविद्यालय ने कुछ स्पेशलाइज्ड लैबोरेटरीज जैसे कि बहुविषयक प्रायोगिक एवं परीक्षण सुलभ प्रयोगशाला, द्रव्य विज्ञान प्रयोगशाला, धातु श्रांतिकी प्रयोगशाला दैट इज ट्राइबोलॉजी लैबोरेटरी, ऊर्जा प्रयोगशाला सम्मिलित है। विश्वविद्यालय ऊर्जा एवं पर्यावरण के प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्राथमिकता दे रहा है और इस संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण आदि विभिन्न विषयों पर अनुसंधान गतिविधियों को संपादित कर रहा है। असम राज्य में तकनीकी शिक्षा के विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अंतर का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय के अंतर्गत कर्टिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सहयोगी परियोजना की रूपरेखा बनाई है। इसके सिवा विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं उद्योगों के साथ कई MOUs निष्पादित किए हैं। असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने
पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया मॉस्को, जिसको रुडन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ एक समझौता किया है, जिस समझौते के आधार पर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में निरंतर सुधार एवं इंटरनेशनल लेवल की गतिविधियां हमारे छात्रों को प्राप्त हो रही है। इसके साथ कुल 4 छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के साथ एमएस पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। So this also tells us the international collaborations, active collaborations that we have. असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सामूहिक रूप से अपने हितधारकों को और समाज के लाभ के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु संभावनाओं को समझने एवं तलाशने के लिए निरंतर कार्यरत है। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन हेतु व्यापक कार्य योजना पहले से ही तैयार की जा चुकी है। मुझे अवगत कराते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि असम कैबिनेट में असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को एक शिक्षण एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, जो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दर्शन में विश्वविद्यालय के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संरेखित करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय राज्य एवं केंद्र सरकारों के समर्थन के साथ बहुविषयक अनुसंधान एवं नवाचार गतिविधियों के संचालन के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। हम विश्वविद्यालय में असमीज लैंग्वेज में कुल 20 तकनीकी विषयों के पुस्तकों की अनुवाद की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुके हैं। द्वितीय वर्ष के स्नातक एवं विशिष्ट प्रमाण पत्र दैट इज डिप्लोमा लेवल के तकनीकी पाठ्यक्रमों के कुल 86 पुस्तकों का इंग्रजी भाषा से असमीय भाषा में अनुवाद करने का प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव में हम कार्यरत हैं। संस्थागत विकास योजनाएं जैसे कि सौर पीवी संयंत्र प्रतिष्ठान, इंटरनेट सुविधा स्थापना और पानी की समस्या हल करना, इसके लिए विश्वविद्यालय कार्यरत है और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को अप्रोच किया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को असम सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा भी वित्तीय सहायता मिल चुकी है। इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट अभियंताओं को गंभीर परंतु रचनात्मक, जिज्ञासु एवं सक्षम होना चाहिए। What we see in the today's world has been transformed by the engineers. Sometimes it is said that scientists explore, but engineers are the ones who create. और आज जो हम हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रगतिशील योजनाएं देख रहे हैं, we have the best airports in the whole world. We are on the way to transform our railway stations
we are on the way to transform our road networks and many other related technological advances we want to harness for the society, and that is done by the engineers. So, अभियंताओं को विचारों को यथार्थ रूप में बदलने के लिए सक्षम होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने नए स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का एक सशक्त नींव बनाने के लिए डिज़ाइन बनाई हैं, और इसकी लिए हमारे एकेडमिक काउंसिल और विभिन्न बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में काफ़ी हद तक हम इसको मंजूरी दे चुके हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य समयबद्ध परीक्षा आयोजन करना और समय पर परिणाम घोषित करना रहा है। छात्र नामांकन एवं परीक्षा परिणाम क्रियान्वयन प्रणाली को विश्वविद्यालय ने कंप्यूटराइज किया गया है। मुझे आपके साथ साझा करने में प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय निर्धारित समय पर सभी परिणामों को, परीक्षा परिणामों को घोषित करता आ रहा है। हमारे छात्रों के प्रमाण पत्र, विशिष्ट प्रमाण पत्र, दैट इज सर्टिफिकेट्स, अन्य उपाधियां, अंक पत्र एवं अन्य मूल्यांकन निकायों द्वारा प्राप्त अंक पत्र विधिगत डिजिटाइज्ड कराए गए हैं, और ये डिजिटाइज्ड वर्जन्स आर अवेलेबल इन द राष्ट्रीय शैक्षणिक संग्रहालय, जिसको हम NADP कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संग्रहालय में भी शामिल हो गया है। विश्वविद्यालय राज्य के विभिन्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्रवेश के लिए 2018 से CEE संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रगतिशील है, और यह दायित्व विश्वविद्यालय को असम सरकार ने सौंपा है। इसी तरीके से 2018 के बाद JLEE दैट इज संयुक्त पार्श्व गौण प्रवेश परीक्षा डिप्लोमा के बाद स्नातक के लिए इंजीनियरिंग बीटेक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए, तथा संयुक्त MCA प्रवेश परीक्षा JMEE भी 2018 से विश्वविद्यालय आयोजित करते आ रहा है। असम सरकार ने अभियांत्रिकी शिक्षकों की भर्ती के लिए भी विश्वविद्यालय को लिखित परीक्षा आयोजन का दायित्व सौंपा था, जो विश्वविद्यालय ने करीब 1 महीना पहले मई में पूर्ण किया है। असम सरकार ने विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अमूल्य सहयोग दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद दैट इज NAAC की आवश्यकता पूरा करने के लिए और विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 12B के पंजीकरण हेतु अधिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। इसके पश्चात ही असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बाहर से धन लाभ उठाने की प्रयास कर सकेगा। विश्वविद्यालय समाज के कुछ लोकप्रिय गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिसमें विश्वविद्यालय नियमित रूप से
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अभियंता दिवस, हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, विश्व महिला दिवस आदि समय समय पर आयोजित करता आ रहा है। असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के बीच बंधुत्व एवं सहयोग की भावना को बढ़ाने देने के लिए विश्वविद्यालय एवं इसके संबद्ध संस्थानों के छात्र छात्राओं में वार्षिक खेल एवं सांस्कृतिक बैठक का भी आयोजन करते आ रहा है। यह अवलोकन किया गया है कि तृतीय वार्षिक खेल एवं सांस्कृतिक बैठकों में संबद्ध संस्थानों की भागीदारी काफ़ी बढ़ चुकी है। प्रिय छात्र छात्राओं, स्नातक तकनीकी शिक्षा ने आपको कार्यक्षेत्रीय ज्ञान के संदर्भ में कुछ अनावृत किया है एवं अवसर दिया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा आपको किसी भी विषय में पारंगत करने के लिए नहीं है, अपितु आपको जीवन भर सीखने के लिए सक्षम बनाना और सीखने के लिए प्रेरित करना है, जिसको हम इंग्लिश में लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहते हैं। तो व्हाट वी वांट टू डू और व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राइड टू ओरिएंट आवर ग्रेजुएट्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग so that their professional growth is continuous throughout their life. हम सभी का भविष्य तो निश्चित नहीं है। Tomorrow what is going to come we do not really know. Technologies are changing very fast. We know AI, machine learning has been transforming the technologies in all areas. बट विश्वविद्यालय शिक्षा का ऐसा एक उपकरण अवश्य है जिससे आप अपने व्यावसायिक आजीविका के प्रत्येक चरण में श्रेष्ठतम पाने के लिए उपयोग कर सकेंगे। इन सबसे ऊपर कभी ना भूले कि आप द्वारा सीखी हुई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है कि मन एवं बुद्धि को नवीन एवं रचनात्मक विचारों और दृष्टिकोणों को सदैव खुला रखें। जो आप सभी के लिए पृथक पृथक हो सकता है, परंतु यह एक मूल मंत्र है जिससे आप यहाँ से ग्रहण करके जा सकते हैं। मैं पुनः आपको, आपके माता पिता को अपने ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और मुझे आशा है कि आप इन ख्यातिपूर्ण अनमोल क्षणों का भरपूर आनंद लेंगे। धन्यवाद। जय ओम, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज स्टैंड अप, ऑल स्टूडेंट्स। All students please stand up. Yeah. माननीय कुलाधिपति, मैं आपसे सभी स्नातक छात्रों को प्रतिज्ञा दिलाने का अनुरोध करता हूँ। आप बैठे हैं, मैं प्रतिज्ञा पढ़ूंगा। अंत में आप लोगों को केवल मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये दोहराना है। क्या आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिज्ञा करते हैं तथा घोषणा करते हैं कि यदि आपको उन उपाधि या विशिष्ट प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा की स्वीकृत कर लिया गया जिसके लिए आपको अनुशासित किया गया, जो आप इसको स्वयं के दैनिक जीवन में आचरण में लाएंगे
और विश्वविद्यालय के सदस्य बने रहेंगे। आप दोहराएंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा द्वितीय, क्या आप पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से प्रतिज्ञा करते हैं कि आप समाज में सामाजिक सुरक्षा, साम्य एवं न्याय को स्थापित करने के प्रयास करेंगे? तृतीय प्रतियोगिता, क्या आप पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से प्रतिज्ञा करते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में न्याय युक्त कर्तव्य से विचलित करने के लिए सभी प्रकार के प्रलोभों और असाम्यक प्रभावों का प्रतिरोध करेंगे? धन्यवाद। उम्मीदवार प्लीज आपका स्थान ग्रहण करें। मुझे उम्मीदवारों को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। उम्मीदवारों को अब प्रस्तुत किया जाए। चाहता हूं कि वे अपने स्थान पर खड़े हों। महामहिम कुलाधिपति, मैं इन उम्मीदवारों के सामने आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उपाधि के स्वीकृत किया जाए। असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं मेरे अंतर्निहित अधिकारों के आधार पर मैं आपकी संबंधित प्रौद्योगिकी, परास्नातक, अभियांत्रिक, परास्नातक, औद्योगिकी स्नातक एवं अभियंता की स्नातक की उपाधि की स्वीकृति करता हूँ तथा मैं आप में से प्रत्येक को आजीवन इस उपाधि के योग्य होने की घोषणा करता हूँ। Candidates may now take their seats. इन उम्मीदवारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें असम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संबंधित मास्टर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी उपाधि के लिए स्वीकृत किया जाए। असम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मेरे एवं मेरे अंतर्निहित अधिकारों के आधार पर मैं आपकी संबंधित औषध विज्ञान परास्नातक, औषध विज्ञान स्नातक एवं औषध विज्ञान के विशिष्ट प्रमाण पत्र डिप्लोमा की उपाधि को स्वीकृत करता हूँ तथा मैं आप में से प्रत्येक को आजीवन इस उपाधि के योग्य होने की घोषणा करता हूँ। Candidates may now take their seats. मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ डिज़ाइन के स्नातक उपाधि के उम्मीदवारों के आग्रह करता हूं कि वे अपने खड़े हो जाए। महामहिम कुलाधिपति, मैं इन उम्मीदवारों के सपक्ष आपको प्रार्थना करता हूं कि असम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संबंधित मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ डिज़ाइन की उपाधि की स्वीकृति किया जाए। असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में एवं मेरे अंतर्निहित अधिकारों के आधार पर मैं आपकी संबंधित व्यवसाय प्रबंधन के परास्नातक, योजना निष्णात, योजना शास्त्र के विषयांक प्रबंधन में स्नातक, सत्यापन कला में स्नातक एवं रचना विज्ञान डिज़ाइन के स्नातक की उपाधि को स्वीकृत करता हूँ तथा मैं आप में से प्रत्येक को
आजीवन इस उपाधि के योग्य होने की घोषणा करता हूँ। Candidates may now take their seats.